Hi friends, so today in this particular segment we are going to discuss section 41 of the Indian Contract Act. In our previous lectures we have discussed section 39 and section 40 in full detail. This section is very important, but it is not mentioned in a detailed manner in the Bare Act. If we see, there is no particular illustration with respect to this section. So we are going to discuss section 41, which is important section, and I'll be discussing this section in whole detail as much I can, and we'll be discussing it in this particular segment. So listen it carefully and be with this video till end. You will be knowing about this section at large. So this section basically talks about the effect of accepting performance from the third person. So basically, the effect of accepting performance from the third person. What effects can we see when we accept any performance from the third party or the third person? So if you see clearly mentioned, when a promisee accepts performance of the promise from the third person. So now who is actually accepting the promise over here? The promisee is accepting the performance of a promise, okay, from the third party or from the third person, okay. He cannot afterwards enforce it against the promiser. So let me clear you one thing here is that you see the promiser, basically the promiser is the original party to the contract, but the third person is not actually the original party to the contract. Similarly, when we will move further, we will be discussing this thing with respect to some case clauses, case laws. Then you will be getting much more clearer vision with respect to this section. Okay, so this means that if a particular person who has accepted the performance of a promise from a third person, afterward he cannot enforce that particular promise against the original person, original promisee, okay. So original party, you can say, he cannot enforce that particular promise against the original person afterward accepting the promise from the performance of promise from the third party. Okay, I hope you got it with respect to this section. What does I mean? मैं ये कहना चाहता हूँ इस सेक्शन के माध्यम से कि अगर आपने कोई भी प्रॉमिस को एक्सेप्ट करा है, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस को एक्सेप्ट करा है, किसी भी प्रॉमिस को उसका परफॉर्मेंस नहीं हुआ था, उसके ओरिजिनल मालिक ने उसका परफॉर्मेंस नहीं करा, लेकिन उस पर्टिकुलरली प्रॉमिस को किसी थर्ड पर्सन ने निभा दिया, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब जो पर्टिकुलर प्रॉमिस जो थर्ड पार्टी ने कर दिया है वो बेसिकली ओरिजिनल पर्सन टू द प्रॉमिस जो था उसको करना पड़ेगा. ही विल बी नॉट इन्फोर्स टू डू दैट अगेन, ओके. बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं. देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इट with reference to the case laws. But before moving further, we'll be giving some light to this particular section. If a contract requires a specific party to perform a task, but a third person performs it with the consent or acceptance of the party entitled to the performance. Now, what is this saying here is the contract requires a specific party, okay, to perform a task. Now, the contract requires a specific party, okay, but instead of that specific party, any third party performed the performance basically. So if that particular promisee accepts that from that third party instead of that original party, the third party has actually performed that promise. Now the original party who had the duty to perform, is no longer responsible for the task. Now that ओरिजिनल पार्टी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दैट टास्क, ठीक है. तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी दूसरी व्यक्ति ने, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन ने वो बेसिकली परफॉर्मेंस कर दिया है उस पर्टिकुलर प्रॉमिस का, तो अब जो वो ओरिजिनल पर्सन था, ठीक है, वो दोबारा से उस प्रॉमिस को नहीं करेगा, ठीक है. यही ये सेक्शन हमें बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है. तो आई होप यू गॉट इट. अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में समझेंगे. जैसा पहला क्या है, कंसेंट और एक्सेप्टेंस. अब इसमें क्या रहता है, लेट्स सपोज दैट इफ अ पार्टी who needs that performance, actually he got that performance through the third party, okay.
तो अगर वो जो प्रॉमिसी है उसने अगर वो एक्सेप्ट करा है थर्ड पार्टी से, उसने अपना कंसेंट दिया है, अगर उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया है, ठीक है, तो वो पार्टी क्या है, वो क्या है, एंटाइटल्ड है बेसिकली, ठीक है। एंटाइटल्ड है मींस पार्टी इंटाइटल्ड टू द परफॉर्मेंस और मस्ट एग्री और एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस बाय द थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अगर वो प्रॉमिसी ने एक्सेप्टेंस दिया है, अपना कंसेंट दिया है, तो वो उससे जो है परफॉर्मेंस ले सकती है, किससे, थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो ये पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है, कंडीशन वी वुड से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमें देखने को मिला। दूसरा क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। इस पूरे सेक्शन के अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। एंड नाउ द डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन मीन्स हियर once the performance by the third party is accepted, now the particular promisee has accepted the performance from the third party, okay, now the original party's liability to perform that particular promise is being discharged, so he is actually discharged from doing that performance of the contract, ठीक है, to perform that promise you would say। तो वो अब जो ओरिजिनल पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, जो ओरिजिनल पार्टी थी कॉन्ट्रैक्ट की, अब वो प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करेगी और वो अपने प्रॉमिस से क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो गई है। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है यहाँ पे कि उसका जो प्रॉमिस ही था, अगर उसने एक्सेप्टेंस कर लिया है थर्ड पार्टी से, ठीक है, तो तब जो है कि वो ओरिजिनल पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की थी, वो बेसिकली that party will not perform that promise again and will be discharged from its obligation, contractual obligations to perform the promise. So I hope you got a clear background or the base with reference to this case, okay, with reference to this section 41 of the Indian Contract Act 1872. Now अगर मैं इसमें आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूं, so let's suppose A owes B's 500 rupees, okay, so if C pays to B on behalf of A and B accepts the payment, then A's obligation is discharged. तो अब यहाँ पे क्या है कि जो A है उसने B के 500 रुपए ओ करे थे, ठीक है, मींस उसने डेट लिया था 500 रुपीज का, किससे, B से। लेकिन यहां पर बी का जो ए ने बेसिकली 500 रुपीज बी से लिए थे, उसकी जगह लेट सपोज वो ए दे नहीं पाया बी को 500 रुपीज, तो उसकी जगह सी ने जो है कि 500 रुपीज जो है बी को दे दिए ए की जगह पे, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ ए सी ने उसके 500 रुपीज उसको दिए। नाउ बी एक्सेप्ट द पेमेंट। अब जो है बी ने जो है कि वो सी का पेमेंट एक्सेप्ट करा है। अब नाउ हियर सी इज बेसिकली द थर्ड पार्टी, okay, अब now B has accepted the payment from C and C is here the third party, okay, then A is discharged from its obligations to perform that particular promise, okay। तो अब यहाँ पे जो है A 500 रुपीज B को नहीं देगा, क्योंकि B जो है, जो A है अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से अब डिस्चार्ज हो चुका है। तो आई होप यू गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस सेक्शन विद दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो ये चीज समझ आई होगी आपको। अब नाउ मूविंग फर्दर वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम केस लॉस। नाउ द फर्स्ट केस लॉ इज डॉक्टर वेंकांता रेड्डी वर्सेस आर सुल्तान एंड अदर्स AIR 1976। नाउ दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें इसके सिमिलर एक और केस है वो भी डिस्कस करेंगे। द फैक्ट ऑफ द केस इज दैट द प्लांटिफ who was the creditor, plaintiff क्या है, creditor है, accepted the money from a third party instead of the original debtor without any objection। अब जिसको पैसा चाहिए था, ठीक है, प्लेंटिफ वाज द क्रेडिटर एंड ही वांट्स द मनी। नाउ ही गॉट मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ओके। नाउ व्हेन ही गॉट द मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी बेसिकली, सो इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल पार्टी, तो यहाँ पे उसने उस बेसिकली क्रेडिट को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो अब इसमें जो जजमेंट आया बेसिकली दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। द कोर्ट हेल्ड दैट बाय एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस, कोर्ट हेल्ड दैट बाय एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस of obligation basically from the third party, the creditor had discharged from original debtor from liability। तो यहाँ पे जब क्रेडिटर ने बेसिकली वो जो डेट था इन मनी के रूप में एक्सेप्ट करा किसी थर्ड पर्सन से, तो जो ओरिजिनल
पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था वो अब अपनी ऑब्लिगेशन से यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। तो यही एक ऐसा जजमेंट था जिसने इस सेक्शन का यहाँ पे बेस रखा, एक तरीके से हम बोलेंगे 1976 का एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। लेकिन इससे पहले एक और केस आया था 1913 का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गॉट इट। सो द कोर्ट हेल्ड दैट बाय एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी दैट क्रेडिटर हैज एक्सेप्टेड द पर्टिकुलर पेमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, नाउ this actually had discharged the original party to the contract, okay, from performing that particular promise। तो अब वो जो ओरिजिनल पार्टी था कॉन्ट्रैक्ट का वो उस प्रॉमिस को नहीं निभाएगा। तो आई होप यू गॉट इट। अब इसमें जो एक प्रिंसिपल हमें देखने को मिला कि भाई एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस, जो मैंने बताया ना इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे पहले, जो एक्सेप्टेंस है आपका या फिर आपका जो कंसेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंसेंट आपने दे दिया कि भाई मैं थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, तो जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है अब उसको जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अब जो है उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यू गॉट इट। अब इसमें प्रिंसिपल वही निकला कि एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन और अ पार्टी अमाउंट्स टू डिस्चार्ज ऑफ द ओरिजिनल ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो ओरिजिनल ऑब्लिगेशन किसकी थी, वो पर्टिकुलरली ओरिजिनल पार्टी की, लेकिन उस पार्टी ने वो ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा, तो उसकी जगह किसने कर दिया, किसी थर्ड पर्सन ने उसकी ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया। तो आई होप यू गॉट इट। और इसी वजह से जब उस थर्ड पर्सन ने उस ऑब्लिगेशन को पूरा कर दिया तो वो जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थी वो क्या हो गई है, यहाँ पे डिस्चार्ज हो गई। तो अगर आप एक बार सेक्शन को दोबारा से अच्छे से पढ़ेंगे तो वो क्या बोलता है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन। जब कोई भी परफॉर्मेंस को आप एक्सेप्ट करते हैं किसी तीसरे व्यक्ति से, फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन और एनीबडी एल्स देन द मेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो यही ये सेक्शन बात करता है। सिमिलरली एक केस था कोचीन कोल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कृष्णन नायर AIR 1923। Now this case is very similar to the Venkanta Reddy versus R Sultan and others AIR 1976 का जो केस था उसी के सिमिलर है। तो इसमें भी वही बोला गया, सिमिलरली a party delivered goods on behalf of the original party, the delivery was accepted by other party without objection, the acceptance of third party performance binds the parties to the contract। ठीक है, अब जब वो थर्ड पार्टी ने बेसिकली यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस जो है कि जो है यहाँ पे गुड्स डिलीवर कर दिए, तो वो पार्टी क्या बन गई है, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट बन गई, यानी कि वो बाइंड हो चुकी है उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ। इसलिए जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो अपना परफॉर्मेंस प्रॉमिस पूरा नहीं भी करेगी तो भी जो है कोई भी उसके खिलाफ कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑल्दो ये चीज हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है इसमें। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट केस है इसमें कन्हैया लाल वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड केस ऑफ 1913, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि भाई 1913 का जो एक बहुत पहला केस है वो कौन सा आया है। तो ये इंपॉर्टेंट केस है कन्हैया लाल वर्सेस नेशनल बैंक ऑफ इंडिया 1930। द प्लांटिफ कन्हैया लाल बोरोड मनी फ्रॉम नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, प्लांटिफ वाज अनेबल टू रिपे द लोन और डेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बेसिकली द प्लांटिफ है ना, हु हैज बोरोड मनी फ्रॉम द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, नाउ इज अनेबल टू रीपे दैट पर्टिकुलरली लोन और द डेट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, नाउ द थर्ड पार्टी नॉट टू द ओरिजिनल पर्सन, ओके, ओरिजिनल डेटर कन्हैया लाल जो हमारा ओरिजिनल डेटर था, तो यहाँ पे जो अब जो थर्ड पार्टी है उसने क्या कर दिया, कन्हैया लाल की जगह पे पेमेंट कर दिया। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द कन्हैया लाल द थर्ड पार्टी हैज बेसिकली रिपेड द पेमेंट। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि हम अभी फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद हम पूरा डिटेल जा रहे हैं इस केस के अंदर। और उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिला कि नेशनल बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया वो थर्ड पार्टी का जो है पेमेंट। ठीक है, कन्हैया लाल तो पेमेंट नहीं कर पाया क्योंकि वो डेट में था और मतलब डेट वो चुका नहीं पा रहा था, लोन ही वाज अनेबल टू रीपे, बट इंस्टेड ऑफ कन्हैया लाल हु पेड दैट पर्टिकुलर डेट, द थर्ड पार्टी एक्चुअली पेड दैट डेट। नाउ हियर तो विदाउट एनी ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बनता है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। देखो, अगर कोई भी जो बैंक है या फिर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है किसी भी पेमेंट को फ्रॉम द थर्ड पर्सन विदाउट एनी रिजेक्शन और प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन कुछ नहीं करती है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बनता है कि भाई बैंक जो पर्टिकुलर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनको कोई मसला नहीं है अगर थर्ड पार्टी से भी उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो
चार चीजें मैंने आपको बताई। पहली क्या है कि कन्हैया लाल बोरोड मनी फ्रॉम द नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, प्लेंटी वाज अनेबल टू रीपे द बेसिकली द लोन और द डेट, है ना, एज पर इट्स फाइनेंशियल कंडीशन कुड बी, ठीक है। जो कन्हैया लाल था कि हो सकता है कि उसके पास उस समय पैसे ना हो, तो इस वजह से वो जो है अपना पेमेंट पूरा नहीं कर पा रहा था। तीसरी चीज ये थी कि भाई जो थर्ड पार्टी ने जो है कि कन्हैया लाल के बिहाफ में यहाँ पे पेमेंट कर दिया, तो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया ने फिर एक्सेप्ट भी कर लिया बिना रिजेक्शन और बिना प्रोटेस्ट के, बिना ऑब्जेक्शन के। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर इज नाउ द इशू अरोज, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या निकला वो चीज के बारे में बात करेंगे। वेदर कन्हैया लाल द ओरिजिनल डेटर वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी आफ्टर द थर्ड पार्टी मेड द पेमेंट। तो क्या जो कन्हैया लाल है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है? इंस्टेड कन्हैया लाल की जगह किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। तो पहला इशू कोर्ट ऑफ लॉ में ये अरोज हुआ, ठीक है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल बी डिस्कसिंग द लीगल इश्यूज। अब लीगल इश्यूज क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला क्या है, वेदर अ डेटर ऑब्लिगेशन कैन बी डिस्चार्ज। क्या इफ अ थर्ड पार्टी मेक्स द पेमेंट विदाउट डेटर्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, क्या यहाँ पे डेटर का ऑब्लिगेशन को हम डिस्चार्ज कर सकते हैं अगर थर्ड पार्टी पेमेंट कर देती है बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे, वो तो थर्ड पार्टी तो एक्चुअली द थर्ड पार्टी इज नॉट द डायरेक्ट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। नाउ जब थर्ड पार्टी यहाँ पे पेमेंट कर रही है, तो क्या डेटर की ऑब्लिगेशन वहाँ पे डिस्चार्ज होगी? दूसरा जो लीगल इशू यहाँ पे निकला, वेदर द एक्सेप्टेंस ऑफ द थर्ड पार्टीज परफॉर्मेंस, ओके, बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर यहाँ पे कौन था? बैंक, जिसको अपना पैसा वसूलना लेना था, वापस लेना था, ठीक है। डिस्चार्ज द ओरिजिनल डेटर अंडर सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या जो थर्ड पार्टी के एक्सेप्टेंस से क्रेडिटर बेसिकली डेटर को डिस्चार्ज कर देगा क्या? तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, दो लीगल इश्यूज, ठीक है। क्या थर्ड पार्टी के एक्सेप्टेंस से क्रेडिटर को, क्रेडिटर जब उसको थर्ड पार्टी के एक्सेप्टेंस से क्रेडिटर यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, उसके बाद डेटर को क्या ये डिस्चार्ज कर देगा उसकी अपनी ऑब्लिगेशन से, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिले। अब जो यहाँ पे कोर्ट का जजमेंट आया उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ द कोर्ट जजमेंट, यहाँ पे काफी लेंदी जजमेंट ये रहा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 1913 का एक केस है। सो विल बी डिस्कसिंग दिस। नाउ द फर्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द थर्ड पार्टी। अब जो है यहाँ पे जो थर्ड पार्टी की ऑब्लिगेशन थी वो डिस्चार्ज हो गई है, ठीक है। तो जो सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द थर्ड पार्टी, जो ओरिजिनल पार्टी की ऑब्लिगेशन थी कि वो परफॉर्म करेगा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को, बट नाउ द थर्ड पार्टी हैज परफॉर्म्ड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ओरिजिनल पार्टी। तो इस वजह से जो ओरिजिनल पार्टी थी वो अपनी ऑब्लिगेशन से क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। ये चीज मैंने पहले भी डिस्कस करी, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहे हैं उसको लेकर। कोर्ट रूल दैट व्हेन अ क्रेडिटर, जो हमारा नेशनल बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सेप्ट द पेमेंट और परफॉर्मेंस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, इट अमाउंट्स टू डिस्चार्ज ऑफ डेटर्स ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो जब उसने उस अमाउंट को एक्सेप्ट करा किसी थर्ड पार्टी से, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थी उसकी ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। ये कोर्ट ने रूल करा। इसमें एक सीधी लाइन जो कोर्ट ने यहाँ पे लिखी, वो बोली, वो था एज लॉन्ग एज क्रेडिटर एक्सेप्ट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन और बिना किसी ऑब्जेक्शन रिजेक्शन के, बिना उसको रोक के, ठीक है, उसको आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, उसको कंसेंट दे रहा है, हाँ भाई दे दो कोई ना, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी आर सीइंग दैट हाउ द कोर्ट जजमेंट डिटरमिन्स द पर्टिकुलर केस विद रिस्पेक्ट टू द जो यहाँ पे ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करना है किसी भी अगर ओरिजिनल पार्टी की, अगर उसकी जगह किसी थर्ड पार्टी ने उसकी ऑब्लिगेशंस को, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया है, ठीक है। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम द क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर तो कोई ऑब्जेक्शन दे नहीं रहा है, ठीक है। तो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या करा है यहाँ पे, बाय एक्सेप्टिंग द पेमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी हु वाज नॉट द ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे उसने ये दिखा दिया इम्प्लिसिटली, ये दिस इज द वर्ड दैट कोर्ट हैज मार्क्ड, दैट वाज इम्प्लिसिटली। तो कोर्ट ने यहाँ पे बोला दैट कन्हैया लाल इम्प्लिसिटली डिस्चार्ज फ्रॉम द ओरिजिनल, डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी, है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज जो उसको फुलफिल करनी थी, जो उसको डेट वहां पे चुकाना था, अब वो नहीं चुकाएगा, ठीक है, बेसिकली क्योंकि उसकी जगह किसी थर्ड पार्टी ने वहां पे डेट को चुका दिया है और क्रेडिटर ने कोई ऑब्जेक्शन भी रेज नहीं करा, ठीक है। तो द बैंक डिड नॉट रेज एनी ऑब्जेक्शन। अब यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ इंडिया ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा। सो और द कंडीशन रिगार्डिंग द थर्ड पार्टी पेमेंट, ठीक है, जो कंडीशन थी रिगार्डिंग थर्ड पार्टी पेमेंट, जो है यहाँ पे एक तरीके से बैंक हैज एक्सेप्टेड दैट कंडीशन एंड नॉट एनी रिजेक्टेड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, और नो नीदर objected. So this
टू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। तो कंसेंट देना, एक्सेप्टेंस देना, दूसरा क्या है डिस्चार्ज फ्रॉम इट्स ऑब्लिगेशन, क्या है कि भाई अगर उसको थर्ड पार्टी फुलफिल कर देती है बिना ऑब्जेक्शन के, बिना रिजेक्शन के। तो ये चीज हमें इसमें पता चल रही है कि सेक्शन 41 हाउ मच डिटेल्ड इट इज, बट इफ वी रीड इन द बेयर एक्ट वी वोंट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कंसेंट एंड एग्रीमेंट। अब क्या है कि कोर्ट ने यहाँ पे एम्फेसाइज करा दैट क्रेडिटर्स कंसेंट और एक्सेप्टेंस वाज की इन दिस केस। तो इस केस में जो क्रेडिटर का कंसेंट था, उसका एक्सेप्टेंस था, वो की चीज थी, है ना, वो की इन द केस था कि भाई क्रेडिटर ने अपना बेसिकली क्या दे दिया है, एक्सेप्टेंस या फिर कंसेंट दे दिया है। अब दूसरी चीज इसमें जो कोर्ट ने बोला कंसेंट एंड एग्रीमेंट के अंदर ही कि भाई वंस द क्रेडिटर एक्सेप्ट थर्ड पार्टी परफॉर्मेंस द डेटर्स ऑब्लिगेशन इज कंसिडर्ड फुलफिल्ड। अब जो थर्ड पार्टी ने जो यहाँ पे ऑब्लिगेशन जो है पूरी कर दी है, तो वो जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट वाज his conditions, his considered, it is considered that he has fulfilled its conditions, okay, and even though the performance was done by somebody else। तो अब परफॉर्मेंस तो थर्ड पार्टी ने करा है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था उसका यहाँ पे ये मान लिया गया कि भाई उसकी जो कंडीशन थी, उसने करना था, ऑब्लिगेशन जो अपनी निभानी थी, बेसिकली ही हैज फुलफिल्ड ऑलरेडी। ओके, so the third thing that the case in this particular thing is that in the third point is in this instance the National Bank of India accepting the third party payment। तो इस इंस्टेंस में हम ये देख सकते हैं कि भाई जो नेशनल बैंक ऑफ इंडिया था उसने यहाँ पे थर्ड पार्टी पेमेंट को एक्सेप्ट करा विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, विदाउट एनी रिजेक्शन। यहाँ पे हमें कंसेंट देखने को मिला, यहाँ पे हमें एग्रीमेंट देखने को मिला। अब यहाँ पे एग्रीमेंट में कौन आ गया, वो जो थर्ड पार्टी भी आ गई है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है, अब यहां पे एक्सेप्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ा उसके बारे में हम समझेंगे। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट बाय एक्सेप्टिंग द पेमेंट द डेटर्स डेट वाज कंसीडर्ड पेड ऑफ। अब जो ओरिजिनल डेटर था ओरिजिनल डेटर, ठीक है, कन्हैया लाल, तो कोर्ट ने माना कि भाई अब उसका जो बेसिकली डेट था वो फुलफिल हो चुका है, उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पे इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है कि अगर आपकी पार्टी जो क्रेडिटर है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेती है, तो ये माना जाएगा कि जो कन्हैया लाल है उसने अपना कर्ज चुका दिया है, ठीक है। तो मैंने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है, ऑल्दो द सम टर्म्स कुड मेक यू कॉम्प्लिसिट and these are not easy things to understand, so I'll make you more easy to understand it, okay। The second important point in the effect of acceptance is that and the bank did not raise any objection to the source of the funds, the third party, ठीक है। और बैंक ने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन, कोई रिजेक्शन नहीं करा, कोई रेस इश्यूज कंसर्न नहीं करें कि भाई आप क्यों दे रहे हैं, ओरिजिनल पार्टी क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बैंक ने सीधे पैसे उससे ले लिए, क्योंकि बैंक को तो चाहिए था, ही वॉज द क्रेडिटर, बैंक वॉज द क्रेडिटर ओवर देयर, है ना, एंड कन्हैया लाल वॉज इन द डेट, बट इंस्टेड ऑफ on the behalf of Kanhaiya Lal somebody else or the third party is giving that particular payment, okay। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर। अब जो इसमें पांचवी चीज है काफी इंपॉर्टेंट है, नो नीड फॉर डायरेक्ट परफॉर्मेंस बाय द डेटर, ठीक है। तो यहां पे जो है under such circumstances there is no need for the debtor's direct involvement in fulfilling the obligation once creditor accepted third party's performance, ठीक है। तो अब जो ओरिजिनल डेटर था, ठीक है, अब उसको जो है डायरेक्ट परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज ऑलरेडी क्या है उस ऑब्लिगेशन से, उस कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से क्या हो चुका है, जो है छूट चुका है, ठीक है, एंड ही इज रिफ्रेन्ड फ्रॉम दैट एंड नाउ द ऑन द बिहाफ ऑफ हिम द थर्ड पार्टी हैज गिवन दैट पर्टिकुलर हैज फुलफिल्ड दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ओके। सो यहाँ पे जो है क्रेडिटर को बस एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आई टोल्ड यू सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें हमें देखने को मिली। भाई एक्सेप्टेंस होना चाहिए, रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी कंसेंट होना चाहिए, ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो इनसे क्या होगा कि ये जो अगर कोई भी केस इस पर्टिकुलरली सेक्शन से डील करेगा तो कहीं ना कहीं वो उस डेटर को बचा लेगा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट इट। एंड सिमिलर केस विद रिस्पेक्ट टू दिस वाज द हाजी अब्दुल रहमान वर्सेस हरून इब्राहिम 1915 केस, ओके। ये 1913 का केस है और इसी पे एक सिमिलर केस आया 1915 के अंदर। तो आई होप यू गॉट इट विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने बहुत डिटेल में इसको बताने की कोशिश करी, ऑल्दो इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। So thank you for listening. We'll be meeting in the next very soon. Thank you for listening once again.